See, discussing the problem. Sixth problem: a trader prepares the account on 31st March each year, during which the unavoidable reason no stock could be taken till 15th April. We on with the total cost of the goods from his godown came to 50,000. 50,000 is your total value of physical stock as on 15th April. तो रोल बैक करना है अपने को 15th April से 31st March, बराबर है. फॉर अपना 15th April से लेके 31st March का स्टॉक ढूंढना है. फॉलोइंग फैक्ट्स आर एस्टैब्लिश्ड बिटवीन 31st March एंड 15th April. 15th April का फिजिकल स्टॉक से 31st March का बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक. Sales 41,000 including cash sales of 10,000. Now it doesn't matter whether the sales are on cash or credit. Is that clear? You know that, right? So 41,000 total sales during the period. So what should you do? You are supposed to add back because genuinely we were the owner on 31st March, but the now after 31st March the goods have left the godown. तो 15 मार्च तक नहीं रहेगा तो हम लोग ओनर हैं, तो स्टॉक में ऐड करना पड़ेगा अपने को गुड्स को. 41,000 you will add, but you won't add 41,000, you will add the cost price, which is 20% on sales. So 8,200, so 32,800. 32,800 is what you are supposed to add, right? Right. For 5034 including cash purchase of 1990, doesn't matter, cash credit again. This time you have bought it after 31st March, right? So you are not the owner of these goods. Still these goods are a part of that physical stock. You are going to subtract that. They shouldn't be. तो माइनस करना है, और माइनस करते वक्त तो प्रॉफिट एलिमेंट देखने की जरूरत नहीं है. इट इज 5034. तो माइनस 5034 हो जाएगा आपका. गॉट इट. सेल्स रिटर्न वेयर 1000. ये सेल्स रिटर्न कब हुआ? 31st मार्च और 15th अप्रैल के बीच में हुआ है. तो उस टाइम के बीच में आपको गुड्स मिला है. You are not the owner, still they are in the physical stock. So you are going to subtract those, but you will subtract 800 rupees. You will subtract 800, not 1000. 20% margin minus करने के बाद 800 you will subtract. Is that clear? Then we have on 15th March, goods of the sale value 10,000 are sent on sale or return basis to a customer. The period of approval being 4 weeks. He returned 40% of the goods on 10th April, approving the rest. The customer was billed on 16th April. कुछ 32 जम का सिमिलर एडजस्टमेंट आपको दिखा था टेस्ट में. विधि संघवी ने गड़बड़ कर दिया था, याद है ये? रिमेंबर दिस? हेलो, क्या दिया है? 15th मार्च को आपने सेल और रिटर्न में गुड सेंड किया हुआ है 10,000 का. द पीरियड ऑफ अप्रूवल बीइंग 4 वीक्स. 15th को सेंड किया, 4 वीक के बाद अंदर उसको अप्रूव करना चाहिए, बोलना चाहिए. नहीं बोला तो अप्रूव्ड माना जाएगा. He returned 40% of the goods on 10th April. 31st March ईयर एंड है. 10th April को भाई ने रिटर्न किया और अप्रूविंग द रेस्ट. द कस्टमर वाज बिल्ड ऑन 16th April. अप्रूविंग द रेस्ट मतलब कब अप्रूव हुआ है? 10th April को ही हुआ है. कुछ नहीं दिया मतलब 10th April को ही रिजेक्ट हुआ 40% और 10th April को ही अप्रूव हुआ 60%. नाउ एज ऑन ईयर एंड, ये अपने को नॉर्मल अज्यूम करना है, नॉर्मल प्रोसेस अज्यूम करना है. मतलब वो फ्रीक्वेंट वाला नहीं है, ये मेमोरेंडम बुक्स वाला नहीं है. क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, मतलब नॉर्मल सेल ऑफ रिटर्न हो रहा है. तो एज ऑन ईयर एंड, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज गुड्स? एज आप नॉर्मल सेल और रिटर्न करते हो, तो जैसे जैसे आप सेल और रिटर्न में गुड्स सेंड करते हो, यू ट्रीट इट लाइक नॉर्मल सेल्स, राइट? तो 15 मार्च को आपने सेल्स का एंट्री कर दिया होगा, आपने सेल्स मान लिया होगा. फिर 31st मार्च को आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? व्हाट डू यू थिंक एज ऑन 31st मार्च? Return. You are the owner of these goods. मतलब you assume that the goods are going to get returned. All entire lot of 10,000, क्योंकि अभी तक किसी का भी जवाब नहीं आया है. 40% अप्रूव और 40% रिजेक्ट और 60% अप्रूव हुआ है, लेकिन वो 10 अप्रैल को हुआ है. As on 31st March, we are the owners of entire lot of 10,000 का goods. Is this part clear? बुक में we are the owners of these goods. See, अपने को ये देखना है कि 31st मार्च को क्या था, पास्ट में जाना है. 31st मार्च पे बैठ के देखने का है गोडाउन के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कि कितना फिजिकल वैल्यू और इसमें से ओनरशिप कितने की है अपने पास. दैट इज अवर टारगेट. तो 31st मार्च को ये पूरा का पूरा 10,000 का लॉट फिजिकली नहीं था अपने पास, लेकिन वी आर द ओनर ऑफ दिस लॉट एंटायरली. इज दिस क्लियर? नाउ
coming, let's split it up into two parts, 4 and 6. तो 4,000 का गुड्स का वी आर द ओनर ऑन 31st मार्च एंड द गुड्स वर रिटर्न्ड ऑन 10th अप्रैल. तो अगर उसने 10th अप्रैल को रिटर्न कर दिया है तो अपना फिजिकल इन्वेंट्री में आ गया होगा 15th अप्रैल को, ऑब्वियसली काउंटिंग के अंदर आया होगा कि नहीं आया होगा. तो 31st मार्च है ही और फिजिकल इन्वेंट्री में भी पड़ा हुआ है 4,000, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. We can write a note about it. We can write a note about it. Are you understanding? 4,000 का जो लॉट है, we are the owner on 31st March and the goods are not in the physical, goods are in the physical inventory on 15th April. तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, keep it as it is. But 6,000 का जो लॉट है उस पे कॉन्सेंट्रेट करो. 6,000 का जो लॉट है, we are the owner on 31st March, but the goods were approved by the customer on 10th April. The goods are physically lying with him only. If he has approved, why he will return them, right? So we are the owner as on 31st March, but the goods are not in the physical inventory as on 15th April. So we will have to add that. So 6,000 वाला part add करना पड़ेगा, but again 6,000 is the selling price, so we need to arrive at the cost price, which is 4,800. So 4,800 is what you are going to add. ये पूरे कहानी का net result is 4,800 add. ये समझ में आई बात? पक्का बोलिए. Anyone who did not get? Yeah. Sir, customer was billed on 16th April. उसका क्या? Customer was billed मतलब इसका invoice 16th April को बनाया. Approval उसने दे दिया था 10th April को. तो वो बोलते हैं ना हम लोग, बिल्ड मतलब उसका जो पेमेंट था, बिल्ड मतलब उसका पेमेंट. इनवॉइस हमने या डिस्पैच कर लिया था पहले ही मार्च में, तभी हमने सेल रिकॉर्ड कर लिया. बिल्ड मतलब इनवॉइस उसको हमने 16th अप्रैल को दिया कि भाई पैसा दे दे. उसका पैसा लिया हमने 16th अप्रैल. ऐसा बिल्ड ऑन 16th अप्रैल मतलब इनवॉइस हमने 16th अप्रैल को दिया. डिस्पैच तो तब भी हो गया, और हमारा अजम्पशन है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले हो गया वो सेल हो जाता है, पहले रिसीव किया वो परचेज इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन. तो आपका 15th मार्च को सेल हो चुका था डिस्पैच होने के वक्त, सेल का एंट्री बुक्स में आ गया था. तो 31st मार्च को आपने रिटर्न अज्यूम किया होगा, तो रिटर्न का एंट्री मारा होगा फॉर एंटायर 10,000, because you are the owner of 10,000 lot. But out of that 10, 4,000 का goods we are the owner and they are in the stock, so nothing doing. कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एंट्री भी मार दी और स्टॉक में भी गुड्स पड़ा हुआ है. 6,000 का गुड्स का एंट्री मार दिया होगा आपने 31st मार्च को सेल्स रिटर्न्स का, तो यू बिकम द ओनर, बट द गुड्स आर नॉट इन द फिजिकल इन्वेंटरी, यू आर सपोज्ड टू ऐड इट. So that was your sales return part of sale or return. Last part is consignment. भी कंसाइनमेंट में दोनों हो सकता है. ये कंसाइनमेंट चैप्टर के बाद आएगा तो एकदम केक वॉक लगेगा आपको, क्योंकि कंसाइनमेंट नहीं हुआ इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन है अभी. कंसाइनमेंट में कैसा होता है, दो पार्टीज होता है. सपोज मैं कंसाइनर हूँ, नमन कंसाइनी है, तो मैं नमन को गुड्स भेजूंगा. तो योर आई एम द प्रिंसिपल, नमन इज द एजेंट. ओके, तो मैं नमन को गुड्स सेंड करूंगा टू सेल इट ऑन कंसाइनमेंट. तो कंसाइनी इज लाइक एन एजेंट. ओके, तो कंसाइनी का कोई ओनरशिप होता ही नहीं है गुड्स पे. कंसाइनर इज द ओनर टिल द पॉइंट द सेल इज मेड. सेल होने के बाद द नेक्स्ट बायर विल बी द ओनर. तो कंसाइनी इज नेवर द ओनर ऑफ एनी ऑफ द गुड्स कंसाइन्ड टू. इज दैट क्लियर? वो खाली कस्टोडियन है, गार्डियन है. उसको खाली वो गुड्स लेने का, कंसाइनर से बेचने का है, कलेक्ट करने का पैसा रेमिट करने का कंसाइनर को, उसमें से अपना वो चार्जेस कमीशन काट लेगा और खर्चा काट लेगा, जो भी ये काम होता है एजेंट का. इज दिस क्लियर? तो अभी हाँ, यहाँ पे उल्टा हो रहा है. यहाँ पे हमें किसी ने कंसाइन किया हुआ है. तो सपोज मेरे को रक्षित ने गुड्स कंसाइन किया है, तो रक्षित इज द कंसाइनर, आई एम द कंसाइनर, तो आई विल बिकम द एजेंट. तो मेरे पास अगर गुड्स आया है तो मेरे ओनरशिप नहीं, मैं ओनर नहीं है उसका, मेरे पास ओनरशिप नहीं है उसका. वो गुड्स फिजिकली मेरे पास पड़ा रहेगा, जब तक बिका नहीं फिजिकली मेरे पास पड़ा रहेगा, लेकिन मैं उसका ओनरशिप डिजर्व नहीं करता. आई एम नॉट द ओनर ऑफ दोस गुड्स. इज दैट क्लियर? और ये जो आया हुआ गुड्स है ना, ये अपने लिए कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, इसमें सेलिंग प्राइस का लफड़ा ही नहीं है. अपने लिए आया तो भी कॉस्ट, निकला तो भी वो कॉस्ट में से ही निकलेगा. आर यू गेटिंग दैट? हाँ, अगर हमने नॉर्मल सेल के अंदर गलती से डाल दिया तो हम लोग वो प्रॉफिट मार्जिन माइनस कर देता है, बट इधर तो ऐसा दिया भी नहीं और वो अलग ही है, वो अलग ही रहता है. कंसाइनमेंट सेल मतलब वो मेरा सेल नहीं है,
मेरा सेल मतलब मैं प्रॉफिट लगा के बेचेगा, कंसाइनमेंट का सेल में उसका मार्जिन लगा के फ्यूचर डेटर को बेच देगा। मेरा पर्सनल सेल अलग है, कंसाइनमेंट सेल अलग है। इज दिस क्लियर? तो मैं तो वो गुड्स कॉस्ट पे ही देखेगा, कॉस्ट पे आया, कॉस्ट पे निकल गया, मेरे लिए तो वो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं, वो कंसाइनर का प्रॉफिट। ओके, नाउ इधर तुमको मिला हुआ है गुड्स, यू हैव रिसीव्ड गुड्स ऑफ 1000 रुपीज, इज दैट क्लियर? You have received goods of 8,000 rupees. Now 8,000 का गुड्स दिया है अभी on sale or consignment basis. The trader has also received goods of 8,000 in March. मार्च में ही आ चुका है. For sale or consignment basis, 20% of these goods have been sold till 31st March. आया निकल गया. Nothing doing. Forget that 20%. Left with 80%. And another 50% by 15th April. म्हणजे काय? तुमको 15th, तुमको मार्च में 50% गुड्स मिला, 50% का पे बात कर रहा हूँ, मार्च में 50% गुड्स मिला, अप्रैल में वो बिका, तो एज ऑन 31st मार्च व्हाट इज द सीन? आर वी द ओनर ऑफ दोस गुड्स? नो, फिजिकली होता बट वी आर नॉट द ओनर्स, राइट? बुक में हम लोग ओनर्स नहीं है उन गुड्स के। आर दीज गुड्स इन्वॉल्वड इन दैट फिजिकल इन्वेंटरी ऑन 15th अप्रैल? नो, बिकॉज ये भी आपका बिफोर 15th अप्रैल बिक चुका है, फिजिकल इन्वेंट्री में ये स्टॉक पड़ा ही नहीं है आपका। तो ऑल इन ऑल 100% में से 20% आपने पहले बेच दिया, 50% आपने बाद में 15 अप्रैल से पहले निकाल दिया, तो एज ऑन 15 अप्रैल आपके फिजिकल इन्वेंट्री में कितने अमाउंट का गुड्स पड़ा हुआ है? ओनली 30%, विच इज हाउ मच? 8 3 2400, 2400 का पड़ा हुआ है गुड्स, और उस गुड्स के क्या आप ओनर हो एज ऑन 31st मार्च? नहीं हो, फिर भी एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है। व्हाट यू नीड टू डू? यू नीड टू सबट्रैक्ट दैट 2400, दैट इटसेल्फ इज द कॉस्ट। गॉट इट? अब इस टोटल लॉट में कुछ भी नहीं बिका होता, समझो, टिल 31st मार्च या टिल 15th अप्रैल कुछ भी नहीं बिका होता, पूरा का पूरा 8,000 पड़ा होता 15 अप्रैल के स्टॉक में, तो क्या करते? पूरा का पूरा 8,000 का स्टॉक पड़ा होता, माइनस पूरा 8,000 माइनस कर देते, पूरा 8,000 माइनस कर देते। अच्छा, पूरा का पूरा 8,000 31st मार्च से पहले ही बिक जाता तो नो नो इफेक्ट। इफेक्ट। पूरा का पूरा 8,000 31st मार्च के बाद बिकता तो 31st मार्च और 15 अप्रैल के बीच में बिकता तो नो इफेक्ट। तो भी नो इफेक्ट, तो भी नो इफेक्ट, क्योंकि हम तो फिजिक बुक में तो हम लोग ओनर है ही नहीं। अपने को खाली ये देखना है कि फिजिकल क्वांटिटी में है कि नहीं। अगर फिजिकल में है तो हटा दो, उसमें से माइनस कर दो। अगर फिजिकल में है ही नहीं तो जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। बुक में तो हम लोग वैसे भी ओनर नहीं है उस स्टॉक के। आर यू गेटिंग इट? तो कंसाइन किया हुआ स्टॉक जिसके हम ओनर नहीं है, इन बुक इनवॉइस बेसिस पे हम लोग ओनरशिप है ही नहीं हमारी उसके उस गुड्स की, तो वो फिजिकली अगर होता भी 31st मार्च को तो भी मैं उसको निकाल देता स्टॉक में से। अगर फिजिकली है ही नहीं तो टेंशन ही नहीं है, तो नो इफेक्ट फॉर दैट। गॉट इट? ये है बात आपका कंसाइनमेंट का। अभी यही कंसाइन्ड गुड्स मैंने किसी को कंसाइन किया होता, 8,000 का गुड्स मैंने किसी को मार्च में कंसाइन किया। अभी आप कंसाइनर बन के सोचना, आपने किसी को कंसाइन किया एज ऑन 15 मार्च, 15 मार्च को 8,000 का गुड्स कंसाइन किया है, और उसमें से एक भी नहीं बिका है टिल 31st मार्च, टिल 15 अप्रैल एक भी यूनिट नहीं बिका है, तो क्या होगा? ऐड टू स्टॉक। तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि टिल 15 अप्रैल मतलब उसी के पास गुड्स पड़ा हुआ है, लेकिन आप ओनर हो उसके, यू आर द ओनर ऑफ दोस गुड्स, यू आर सपोज टू ऐड। नाउ व्हाट इफ आपने जो कंसाइन किया हुआ गुड्स है उसमें 31st मार्च और 15 आपने मार्च में कंसाइन कर दिया था, 31st मार्च और 15 अप्रैल के बीच में 2,000 का सेल हो गया, 6,000 का अभी भी पड़ा हुआ है। 31st मार्च और 15 अप्रैल के बीच में बिका है 2,000 का, अभी भी 6,000 का उसके पास पड़ा हुआ है, तो आप क्या 6,000 को ऐड करेंगे? पूरा ऐड करेंगे ना, पूरा 31st मार्च को 31st पूरा मार्च ऐड होगा ना, 2000 ऐड होगा।
पूरा 1000 ऐड होगा, 6000 ऐड होगा कि पूरा? अंडरस्टैंड माय क्वेश्चन, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग। आपने 15 मार्च को 8000 के गुड्स कंजाइनी को दे दिए, ठीक है? 15 मार्च को आपने 8000 के गुड्स अपने कंजाइनी को दे दिए। फिर 1 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में 2000 का गुड्स सेल हो गया उसके पास से। अभी भी 6000 का गुड्स उसके पास पड़ा हुआ है टिल 15-20 अप्रैल, उसके पास पड़ा। आप एज ऑन 31 मार्च का स्टॉक ढूंढने के लिए क्या करेंगे? पूरा ऐड होगा। पूरा ऐड होगा, 8000 पूरा ऐड होगा। सेल कभी हुआ है? 6 अप्रैल। हाँ, तो एज ऑन 31 मार्च, बोला ना पास्ट में जाके सोचने का। एज ऑन 31 मार्च वी आर द ओनर्स ऑफ एंटायर लॉट ऑफ 8000 of goods. What if this 2000 का sale would have happened in March? Then what you would Sir, do? if we have sent goods on consignment तो वो अपने स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए ना? तो the Yes. second question में। हाँ, अपना स्टॉक है, we are the owners, yes. What are you asking? Aryan. Second question is, are these included in the stock now? So that has to be our stock. Our stock, yes. Correct. Our stock, which you find physically in the godown. That has to be our stock. 31st March, we are the owner. Yes. 8000 वाले एग्जांपल में 2000 जो अप्रैल में सेल किया, अभी इससे पिछला एग्जांपल, तो 8000 का we are the owner on 31st March. Yes. Are the goods in physical inventory? No. उसके पास पड़ा हुआ है, अपने पास तो है नहीं, so we will add full 8. What if before 31st March we'd have sold 2000 का goods? नो इफेक्ट। Before 8000 का सेंड किया है, 2000 का बिफोर 31st मार्च सेल हो गया है, और 6000 का उसी के पास पड़ा हुआ है अपने पास। 1000 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? 2, 6, 8 6 ऐड होगा, 2000 का नो इफेक्ट। 6000 will be added, 2000 का no effect. 6000 will be added because now since he has sold it before March, now we have lost the ownership of those goods. Now we are the owners of only 6000 ka goods. Those 6000 ka goods are lying with him only till April. We are not having that plot in our godown. So we'll add. सर आपने लास्ट वाला क्या बोला? लास्ट वाले एग्जांपल में मैंने बोला कि 8000 का गुड्स हमने 15 मार्च को उसको सेंड किया है कंसाइनमेंट बेसिस पे, उसमें से 2000 का गुड्स उसने मार्च 31 से पहले ही बेच दिया है कंसाइनमेंट, और 6000 का गुड्स उसके पास पड़ा हुआ है टिल अप्रैल 15-20 अप्रैल। तो क्या करोगे आप? खाली 6000 ऐड करेंगे। 6000 ऐड। In that case we will add only 6000. Is that clear? So ये था आपका स्टॉक इन्वेंट्री स्टेटमेंट। आता है ना, स्टेटमेंट में इश्यू नहीं है ना, एग्जाम में खाली एरो नहीं मिलेगा, एरो का 0 मार्क्स है यार, और इन्वेंट्री का एरोज, खाली एरोज दिया, कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला, स्टेटमेंट का मार्क्स है। और जनरल में नरेशन लिखना, मेहरबानी करना। और आ जाओ लास्ट वाले क्वेश्चन पे। एनपीओ सब कुछ बनाने बोल दिया है, बहुत अच्छा सा, आई लाइक इट। एनपीओ मस्त सम है, देखो, अरे मस्त बोला तो भाग गया। सी दिस सम ऑफ एनपीओ, ये सम आपको खुद से आना चाहिए। अरे बोल रहा है सर, जान दो। लोग रिसीव पेमेंट दिया और वापस रिसीव पेमेंट बनाना है। हाँ, अरे क्या समय यार, एकदम पक्का सीए लेवल का समय है। ऐसा कुछ सम आता है तो मजा आता है। देखो, ये सम क्रैक करना है, सबको दिमाग लगा के करना है। कितना टाइम लगता है मैं आप पे छोड़ता हूँ। एग्जाम में आपको एग्जाम कंडीशन में 20 मिनट मिलता है, 15 से 20 मिनट। ट्राई टू क्रैक इट विद इन दैट टाइम। चलो देखो, क्वेश्चन पढ़ना, रिसीट पेमेंट दिया है, आर यू अग्रीइंग विद द रिसीट एंड पेमेंट, आपसे पूछा जा रहा है। आपको लग रहा है तो ठीक है, उसी के साथ बना लो आगे। नहीं लग रहा है, कुछ फ्लॉ लग रहा है, तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ी पूछा रहेगा, करना ही रहेगा ना कुछ तो। शाबाश, यू आर इंटेलिजेंट। सो रिसीट पेमेंट भी बनाना है, उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर भी बनाना है, उसके बाद डबल बैलेंस शीट भी बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल फंड भी मिसिंग है सामने। चलो पहले रिसीट पेमेंट ताजा ताजा बनाओ, मस्त एकदम चकाचक रिसीट पेमेंट मेरे को नया वाला बना के दिखाओ विद द गिवन डेटा। यूज योर ब्रेन, इट्स एंटायरली मैनेजेबल। आपने इससे खतरनाक सम ऑलरेडी किया हुआ है,
उसका कंसेप्ट खाली अप्लाई करना है इसमें। रिसीट पेमेंट में क्या सोचने का, इनकम एक्सपेंडिचर में क्या सोचने का, करो। आखिरी समय आपका ये, उसके बाद छुट्टी। जिसको भागने का कल के जैसे भाग जाओ घर पे। अरे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर रिसीव्ड दिस ईयर तो लेस होगा ना? रिसीट पेमेंट कर रहे हो, रिसीट पेमेंट में देखो दिया हुआ है ऊपर, क्या दिया है पढ़ो। एनुअल इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन दिया है। इनकम, इनकम म्हणजे कौन सा सब्सक्रिप्शन? करंट ईयर ना? करंट ईयर इनकम, इनकम मतलब अर्न्ड, इनकम वाला सब्सक्रिप्शन मतलब अर्न्ड सब्सक्रिप्शन दिया है। इसके ऊपर उसने दो एडजस्टमेंट किया है, ये नीचे भी अर्न कुछ मतलब रिसीव्ड या खाली अर्न? अर्न्ड, अर्न्ड, इनकम मतलब अर्न्ड। दो एडजस्टमेंट आएंगे ना उसमें। दो उसने किया हुआ है, दो अपने को करना पड़ेगा। और तो कुछ लग नहीं रहा। सर लॉस ऑन पूरा सेल डेटा ऑफ फर्नीचर का टू सेल ऑफ फर्नीचर रिसीप्ट साइड में आ जाएगा ना सर? यस यस करेक्ट। कितना आएगा? 270। शाबाश। टू 70 ऐड और 90 लेस होगा ना? यस। हाँ हाँ हाँ, पर एक 270 मिनट, ऐड एक कैसे मिनट। होगा? 270 लेस होएगा और 90 90 भी लेस ही ऐड होगा। होएगा। 90 ऐड होएगा, प्री रिसीव्ड ऑफ करंट ईयर है बेटा। ये रिसीव पेमेंट है, इसके लिए उल्टा कर रहा है ना मतलब? अर्न्ड इनकम से रिसीव्ड पे जा रहे हो। 90 ऐड होगा ना? 90 ऐड होगा, 270 लेस होएगा। देखो नॉर्मली आप प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर माइनस करते हो, है ना? तो उल्टा कर रहे हो, तो प्री रिसीव्ड ऑफ दिस ईयर विल बी एडेड एंड आउटस्टैंडिंग नॉर्मली आप करंट ईयर का ऐड करते हो, तो यहाँ पे माइनस। और लास्ट ईयर का तो ऊपर किया हुआ है उसने, वो बराबर है। चेक कर लेने का लास्ट ईयर का, करेक्टली किया है ना उधर। मिला।
अभी ये रिसीट पेमेंट पे से हम लोग को इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। पहले रिवाइज रिसीट पेमेंट बन गया, हाँ वो बना है। बैंक बैलेंस क्या आया? 90720 90720 चेक कर लो सॉल्यूशन से, राइट है। फिर जाना उस पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सर कैपिटल फंड 36,000 आ रहा है क्या? अरे भाई पहले रिसीट पेमेंट बनाया, हाँ हो गया। वो चेक किया आंसर पहले? नहीं वो नहीं किया था ना भाई। वो गलत हुआ तो पूरा लंगर रॉन्ग हो जाएगा भाई। हाँ 90720 करेक्ट। बराबर है ना बैंक बैलेंस। फिर जाओ बनाओ इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट क्या आ रहा है? 4500 आएगा ना। देखो अर्नड इनकम कितना है 4590, उतना कमाया हुआ है, उसमें 4 एडजस्टमेंट्स करने हैं, 2 उन्होंने किया हुआ है, लास्ट ईयर प्री रिसीव्ड और लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, दैट दे हैव ऑलरेडी डन। यू डू द अदर 2, करंट ईयर प्री रिसीव्ड ऐड एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्ट्रैक्ट। सर अभी इनकम एक्सपेंडिचर में हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 4500 लिखना है या 4590? यू टेल मी नाउ। 4590 आएगा कि 4500 आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में? 4590 याद आ रहा है कुछ? इनकम एक्सपेंडिचर कैसे बनाते थे? रिसीट वाला आउटर कॉलम का सब्सक्रिप्शन उठाते थे और उसमें सब एडजस्टमेंट करते थे। रिसीट का आउटर कॉलम वाला इनकम का इनर कॉलम में जाता है, फिर सब एडजस्टमेंट होता है और फिर इनकम का आउटर कॉलम मिलता है। तो इनकम का आउटर कॉलम वाला रिसीट के इनर कॉलम में जाता है, रिसीट के आउटर कॉलम वाला इनकम के इनर कॉलम में जाता है। तो अर्नड इनकम कितना है इस साल का? अर्नड, वो जो आपने आउटर कॉलम में अभी ढूंढ के रिसीट साइड लिखा है 4500, वो तो रोकड़ा है ना, रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिसीव्ड दिखाना है कि अर्नड दिखाना? अर्नड। तो आप वो 4500 इनर कॉलम में दिखा सकते हो, फिर उस पे एडजस्टमेंट करोगे ना, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। अच्छा इनर कॉलम का यू आर आस्किंग, तो फिर यू आर राइट यार, इनर कॉलम का इज राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड उस पे सब एडजस्टमेंट करो अभी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंसेस 3600 आएगा ना? एक्सपेंसेस ऑफ हाँ, वो पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल निकाल दोगे तो 3600, यस। पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल निकालना ही पड़ेगा आपको, अलग से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स मटेरियल का कहानी है पूरा। ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को कैसे प्रेजेंट करना मालूम है ना? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। यस सर रिसीट पेमेंट में स्पोर्ट्स मटेरियल में मतलब कुछ एडजस्ट करना है या सिर्फ निकालना है और कुछ नहीं करना है? स्पोर्ट्स मटेरियल का खाली वो स्प्लिट करके दिखा देने का। एक्सपेंसेस है ना, उसमें इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल है ना, तो एक्सपेंसेस 3600 एंड पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 2700, खाली अलग करके दिखा दो। और कुछ एडजस्टमेंट नहीं है उसमें? और कुछ नहीं है, वो उधर साथ में रखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में उसको अलग करके दिखा सकते हो आप डायरेक्ट। एक्सपेंडिचर में 3600 और स्पोर्ट्स मटेरियल का पूरा है ना, वो ओपनिंग स्टॉक प्लस पेमेंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली दिखा। स्टेशनरी का दिखाते हो स्पोर्ट्स बार स्टॉक, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो वैसा ये स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेन थिंग रिसीट एंड पेमेंट में 2 ही आइटम मेन था, एक था सब्सक्रिप्शन, दूसरा था वो फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर। वो बत्ती चमका सबका नहीं? बताओ। आएगा तो वो ही ना, रिसीट्स और पेमेंट्स पे भी। क्या? अच्छा हाँ। अरे लॉस थोड़ी दिखता है रिसीट पेमेंट में, लॉस डेप्रिसिएशन इज नॉन कैश। उसके जगह टू सेल ऑफ फर्नीचर रिसीट साइड आएगा, सेल वैल्यू 270 रुपया, 270 रुपीज। क्या फर्नीचर का क्या रहेगा? फर्नीचर उधर क्या दिया है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 180 और कॉस्ट था 450। तो 450 का फर्नीचर तुमने कौन से अमाउंट में बेचा तो 180 का लॉस हुआ, उधर लॉस दिख रहा है तुमको। तो कितने में बेचा रहेगा तुमने 450 का,
तो 180 का लॉस हुआ। 270 में बेचा होगा ना, समझा? हाँ तो हम लोग रिसीट पेमेंट में लॉस थोड़ी दिखाते हैं, लॉस एंड प्रॉफिट इज नॉन कैश ना, लॉस इज नॉन कैश एक्सपेंस एंड प्रॉफिट इज नॉन कैश इनकम। तो रिसीट पेमेंट में लॉस प्रॉफिट डेप्रिसिएशन कभी नहीं दिखता, उधर क्या दिखता है, परचेज वैल्यू एंड सेल वैल्यू। तो इधर सेल ऑफ फर्नीचर हुआ है ना, तो रिसीट साइड आएगा, टू सेल ऑफ फर्नीचर 270, वो लॉस नहीं आएगा रिवाइज रिसीट पेमेंट। समझा कि नहीं तीर्थ? All of you got that furniture वाला part? All of you understood that subscription? सर उन्होंने एडजस्टमेंट में 2 स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है, दोनों का मतलब क्या है? दो दो दिया है, तो क्या दिया है? एक ओपनिंग एक स्टॉक है, previous है। closing stock है। Closing. एक ओपनिंग है, क्लोजिंग स्टॉक है। लाइक 1417 है वो ओपनिंग स्टॉक, 31st March 18 है वो क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग इज लास्ट ईयर प्रीपेड, क्लोजिंग इज दिस ईयर प्रीपेड। ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग goes to last year asset, closing goes to this year asset. और हम्म, तो स्पोर्ट्स मटेरियल ही था ना, अगर जिसका डेप्रिसिएशन का रेट या तो सेल वैल्यू दिया होगा तो एसेट में जाएगा, इधर नहीं है पर था वो ना हाँ मटेरियल, कोई भी मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, मटेरियल। क्रिकेट मटेरियल, बार मटेरियल, डेप्री या सेल दिया है तो एसेट, एसेट अदरवाइज एक्सपेंस। वरना इधर वही स्टॉक दिया है ना, इधर तो एक्सपेंस। क्या कर रहा है वत्सल, पता चला नमन? वीएमएस जेवियर्स की एनएम? एनएम में बढ़िया जेवियर्स क्या उसका? नहीं, एनएम में हुआ उसका, जेवियर्स में एनएम में थोड़ा हो वो गया? कट ऑफ हाई था, अच्छा उसको अच्छा, 71% कुछ आया एंट्रेंस में और वहाँ का था 74, ओ एनएम में ले लिया। ठीक है, अच्छा ही है एनएम स्कूल। हो गया कृषा? सारे स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सपेंस की तरह ही ट्रीट करना है ना? यस एक्सपेंस, क्योंकि स्टॉक्स दिया हुआ है। सेल या डेप्री दिया है तो एसेट, अदरवाइज एक्सपेंस। अच्छा, यश पटेल, आभा, क्या बात है, स्कोर डाउन हो रहा है तुम लोग का बहुत, अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हो? आभा, यश, करो करो यार, मेहनत करो थोड़ा, दिस टेस्ट ना तोड़फोड़ करो थोड़ा।
टॉप 10 में सर दोनों नाम चाहिए। हाँ स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट में नहीं दिखेगा क्या? नहीं, एसेट में वो स्टॉक के फॉर्म में दिखेगा। ओपनिंग अच्छा स्टॉक लास्ट ईयर मतलब एसेट, अच्छा क्लोजिंग स्टॉक दिस ईयर एसेट, बट प्रेजेंटेशन एसेट के जैसा नहीं है, एक्सपेंस के जैसा है। सेल डेप्री अच्छा नहीं दिया ना, स्टॉक्स दिया है, स्टॉक्स। ठीक है ठीक है ठीक है। स्टॉक्स मतलब एक्सपेंस, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, स्टेशनरी का मतलब 1800 ही आएगा ना? सॉरी, एसेट में स्टॉक का 1800 ही आएगा ना? हाँ, क्लोजिंग एसेट 1800, ओपनिंग एसेट 6660, एंड एक्सपेंडिचर में इन ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इज 6660 प्लस परचेज इज पेमेंट साइड पे मिलेगा परचेज, दैट इज 2000। फर्नीचर से लेस 450 होगा ना कॉस्ट प्राइस? यस और करेक्ट, फिर लॉस डेबिट से लॉस डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंडिचर, यस। इनकम एक्सपेंडिचर डेबिट साइड लॉस, बुक वैल्यू 450 माइनस, और कुछ है नहीं ना फर्नीचर का। फर्नीचर हो जाएगा आपका 1350, राइट? यस। अगर स्पोर्ट्स मटेरियल बैलेंसेस तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में आएगा। आएगा ना स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग स्टॉक। ओके ओपनिंग स्टॉक है। हाँ ओपनिंग स्टॉक, ओके ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट तो ईयर का प्रीपेड कैपिटल, एक्सपेंस। हाँ हाँ ओके, तो कैपिटल फंड कितना है? 36 है। हाँ कैपिटल फंड मिला था 36,000। 36। स्पोर्ट्स मटेरियल देखो गाइस, स्पोर्ट्स मटेरियल में ना 3 आइटम है, ओपनिंग स्टॉक है, पेमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक है, मिला? So what is that sports material? That is one of the expense. And what is opening and closing stock? That is prepaid. Opening stock means last year's prepaid. Closing stock means this year's prepaid. Got it? तो लास्ट ईयर का प्रीपेड लास्ट ईयर एसेट। स्टॉक स्टेशनरी क्या करते थे ना, ओपनिंग स्टॉक, पोस्टेज क्या करते थे, ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर एसेट, क्लोजिंग स्टॉक दिस ईयर एसेट, सेम प्रेजेंटेशन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। उसको एसेट के जैसा कब ट्रीट करने का, जब सेल या डेप्री दिया है तो फिर लास्ट ईयर का एसेट ब्रिंग इट टू दिस ईयर, फिर सेल परचेज एंड डेप्री। बट यहाँ पे वो एसेट नहीं है, यहाँ पे यू ट्रीट इट लाइक एन एक्सपेंस। और कौन था कम? क्षणिक, क्षणिक पाटिल को कम मिला है ना ये टेस्ट में, कितना है क्षणिक? 29 अभी कम आया। क्या हुआ, डाउट्स था, नहीं आया, स्पीड में इश्यू था, क्या था प्रॉब्लम? सीधे मिस्टेक्स ही था और तो थोड़ा रिवीजन कम किया था इस टाइम। अभी करोगे कि नहीं? हाँ करूंगा सर नेक्स्ट टाइम बराबर से। अभी बराबर से आ गया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीक 25 तारीख। हाँ सर, ऑल द बेस्ट। बैलेंस कैरी डाउन क्या है रिसीव पेमेंट का? सॉरी 9720। जाए हो गया तो। अरे रुको यार 1 मिनट, चेक कर लो आंसर्स, नीचे है सोल्यूशन पूरा। या फिनिश, प्लीज चेक द आंसर्स। Sakshi but scored full, very good. Dara scored full this test. Radhika didn't score full, right? 37, 38, 37। लास्ट टेस्ट फुल था ना तुमको? एडमिशन वाला टेस्ट में फुल था ना? नहीं था? हाँ बोलो। रिसिप्ट एंड पेमेंट्स में तो स्पोर्ट्स मटेरियल 6300 दिया है ना, तो उसको 3600 2700 दिखाना जरूरी है कि एक साथ रखते तो? रिसीट एंड पेमेंट में एक साथ रखो, वाना नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाना पड़ेगा अच्छे से आपको प्रेजेंट कर। रिसीट एंड पेमेंट में भी दिखा सकते हो अलग अलग, बट उधर साथ में तो भी इश्यू नहीं है। इनकम एक्सपेंडिचर में तो अलग अलग करना पड़ेगा।
एक्सपेंसेस अलग और स्पोर्ट्स मटेरियल का पता, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग। ये प्रीलिम में भी एमसीटी लेवल का ही होगा ना? अपना प्रीलिम हाँ। या ऑलमोस्ट। एमटीबी पेपर्स यही लगे। थोड़ा टफ साइड पे रहेगा क्वेश्चंस, इजी नहीं रहेगा इनसे। ऑप्शंस दे रहे हो कुछ? नहीं, ऑप्शंस में है ना बहुत रेयर एक आध क्वेश्चन में कुछ मिला तो मिला, नहीं तो मोस्टली सब क्वेश्चन कंपलसरी तो करने का वो पूरा टाइम। मत पूछना, फिर वही सोचने में पूरा टाइम चला जाएगा। क्या सोचने में? क्या स्टार्टिंग में ही बहुत डिफिकल्ट मत पूछ लेना, वरना उसमें ही पूरा निकल तुमको रीडिंग टाइम मिलेगा ना 15 मिनट का, पढ़ना आराम से, पूरा चॉइस बना लेना अच्छे से, कौन सा अटेम्प्ट करना है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। वो चलेगा ना क्वेश्चन, 15 कोई भी मिनट का पहला नंबर बराबर अगर का थोड़ा पेपर जल्दी भेज देना तो प्रिंट ले लेंगे, देखने में बहुत टाइम लगता है। तुमको पेपर है ना मैं 20 मिनट पहले दे दूंगा, 5 मिनट में प्रिंट आउट ले लेना, 15 मिनट का रीडिंग टाइम होगा और पूरा 3 घंटा लिखने मिलेगा। ठीक है, 6 से 9, 6 to 9 विल बी योर टेस्ट इवनिंग। तो थोड़ा जल्दी रखो ना सर। बहुत बकवास टाइम है क्या? हाँ 5 to 8 करें? जल्दी करो। 25 तारीख को क्या दिन आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है ना या वेडनेसडे आ रहा है? ट्यूसडे आ रहा है। तो फिर चलेगा 5 से 8 चलेगा, 5 से 8, 5 to 8 सबको चलेगा? 5 to 8 ओके, सो 5 to 8 रख देते हैं, नो प्रॉब्लम। सो 4:40 विल बी द रिपोर्टिंग टाइम। 4:40 से पहले सबको मीटिंग में आ जाना है। 4:40 को पेपर आ जाएगा, 5 बजे तक का रीडिंग टाइम है, 5 से 8 पूरा लिखना है आपको। ठीक है, और यही होगा आपका एग्जैक्ट, उधर जाओगे इंस्टीट्यूट में 3 घंटे का पेपर होगा, 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा, लॉ एंड अकाउंट्स दोनों में। ओके, फर्स्ट 100 मार्क पेपर यू आर गोइंग टू राइट। ऑल द वेरी बेस्ट। चलो बन गई बैलेंस शीट। सर इसमें एक डाउट है, ये रिसीट एंड पेमेंट में स्पोर्ट्स मटेरियल का एडजस्टमेंट मतलब ऑपोजिट क्यों नहीं किया? मतलब अपोजिट क्यों नहीं किया? मतलब ओपनिंग को लेस और क्लोजिंग को ऐड। इन द रिसीट एंड पेमेंट साइड, मतलब जैसे सब्सक्रिप्शन में हम रिवर्स एडजस्टमेंट्स करते हैं सब। हाँ सब्सक्रिप्शन में इसलिए किया क्योंकि वहां पे इनकम वाला सब्सक्रिप्शन दिया था, अर्नड, इसलिए अर्नड इनकम वाला था ना। इनकम वाला सब्सक्रिप्शन में चारों एडजस्टमेंट करोगे आप, तब आपको रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन मिलेगा। बट स्पोर्ट्स मटेरियल में आपको इनकर्ड नहीं दिया है, एक्सपेंस इनकर्ड वाला वो नहीं है पेमेंट साइड पे, वो पेमेंट ही है, वो पेड ही है। जो खरीदा हुआ है ना आपने स्पोर्ट्स मटेरियल, वो परचेज वैल्यू ही है वहां पे, देखो ना, ऐसा नहीं दिया है अमाउंट इनकर्ड ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं दिया, पेमेंट्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल। पेमेंट मतलब दैट इज अमाउंट पेड ओनली, गॉट इट? अगर पेड होता तो करना पड़ता, इनकर्ड होता तो करना पड़ता। ये तो पेड ही है ना, पेमेंट में पेड ही चाहिए ना आपको। इनकर्ड हाँ इनकर्ड होता ना, या फिर एक्सपेंस इनकर्ड ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, या फिर अमाउंट इनकर्ड ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल, तो फिर उसमें ओपनिंग स्टॉक लेस करना पड़ता और क्लोजिंग स्टॉक ऐड करना पड़ता, तब जाके पेड मिलता। अरे ये तो पेड ही है, कोई इश्यू नहीं है। सर या सर 5 से 8 मेरा 23rd से मेरा पर्यूषण स्टार्ट हो रहा है, तो शाम को तो 6 बजे मेरा रहेगा ना, इसके लिए मैं क्या करूं? अभी एक के लिए मेरे को मैंने बोला नहीं, फिर मम्मी ने बोला बोल। क्या करेगा? प्रतिक्रमण करेगा, चौबिहार करेगा? सब मैं तो हर साल सब करता हूं। सब करता है? हाँ। चलो मैं वही एक्चुअली मेरे को क्लिक हुआ बात करने से पहले ही, 2 to 5 का टाइम जमेगा क्या सबको? हाँ सर बेटर रहेगा। 2 to 5 बेस्ट है। मैं वो पूछने वाला था तभी मैं, लेकिन मैं बोला अभी 5 to 8 सब लोग चल रहा है तो मैं कर दिया।
2 to 5 चलता रहेगा तो I'll keep 2 to 5 then. What do you चलेगा say? चलेगा। सबको चल रहा है? All of you? 2 से 5 25 तारीख पक्का? और किसी को इश्यू नहीं है कुछ? 1:30 बजे 1:40 रिपोर्टिंग, ठीक है? 2 to 5 फाइनल रखते हैं। 2 to 5 कुछ इश्यू रहेगा तो बोल दो अभी के अभी, ठीक है? तो मेरे को मैसेज करो, फोन कर दो। चलो ये हो गया एनपीओ, बैलेंस शीट टैलीड। एनीवन एनी डाउट? टेल मी। रिसीट पेमेंट का लॉजिक समझा? उधर क्या देखने का? पैसा आया पैसा गया। इनकम एक्सपेंडिचर, करंट ईयर का इनकम, करंट ईयर का एक्सपेंस, अर्न्ड एंड इनकर्ड, अक्रूवल बेसिस। रिसीट पेमेंट इज ऑन कैश बेसिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ऑन अक्रूवल बेसिस, बराबर है? एंड देन बैलेंस शीट का तो सेम लॉजिक है, लास्ट ईयर, करंट ईयर, एसेट लो, कैपिटल फंड, डालो इधर, टैली करो। सोल्यूशन चेक कर लो सब लोग, आ जाओ लास्ट पार्ट पे। थियरी देख लो जरा फटाफट। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नोटिंग चार्जेस, मालूम है? सिंपल, चार्जेस पेड टू द नोटरी पब्लिक एट द टाइम ऑफ नोटिंग द डिसऑनर ऑफ द बिल, ओके, paid by the respective parties in case of dishonor but borne by the drawee always. फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption वापस आया, देखो फेवरेट है, इस पे थोड़ा ध्यान से ये 3 assumption करके रखना। CAG, ये कंसिस्टेंसी, अक्रूवल एंड गोइंग कंसर्न, एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, अमाउंट ऑफ बिल पेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर अ रीबेट, एंड ओवरराइडिंग कमीशन इज अ पार्ट ऑफ इसमें कंसाइनमेंट, वो आएगा तभी बता दूंगा। ओवरराइडिंग, ओके, बेसिक अमाउंट प्लस एक्सेस अमाउंट पे कुछ सेल किया कंसाइन ने तो उसको ओवरराइडिंग कमीशन भी मिलता है। दैट्स अबाउट इट। MTP3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर होमवर्क सबमिट नहीं किया तो सबमिट करना। 8-10 लोगों का बाकी है अभी भी, आलसी लोग, 10 लोगों का होमवर्क बाकी है, सबमिट कर दो। सेल और रिटर्न आया सबको होमवर्क में? सेल और रिटर्न था ना होमवर्क? सेल और रिटर्न था कि? हाँ, सेल और रिटर्न आया सबको? बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया? कोई डाउट? हेलो, सेल और रिटर्न में लास्ट वैल्यूएशन वाला एंट्री था, ये किया है आपने? मतलब स्टॉक को कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस पे करना था, तो सेल्स रिटर्न आपका सेल प्राइस पे होगा है? हाँ, क्या उसका सेपरेट एंट्री नहीं होता ना? सेपरेट एंट्री नहीं। जब सेल्स रिटर्न टू कस्टमर करोगे तब सेल वैल्यू पे होगा, और जब स्टॉक वैल्यू करोगे तब कॉस्ट और एनआरवी व्हिचएवर इज लेस, 10% माइनस करके कॉस्ट ढूंढना, उसके बाद 10% माइनस करना, ओके। एंड फाइनल अकाउंट्स, कोई डाउट? 10 जन जो भाग गए थे, अगर किसी को डाउट है तो प्लीज वीडियो लिंक भी देख लेना या मेरे से पूछ लो, ओके। एडजस्टमेंट देख लेना, फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में आ सकता है, इसके लिए बोल रहा हूँ। सो रिवाइज इट प्रॉपर्ली एंड वी स्टॉप एट दिस पॉइंट। टेस्ट में हाँ, थ्योरी नहीं होगा, राइट? टेस्ट में नहीं, आंसर इन ब्रीफ नहीं होगा, ट्रू और फॉल्स होगा 8 मार्क्स का, 4 ट्रू और फॉल्स कैन कम फ्रॉम एनी ऑफ द चैप्टर इन द पोर्शन। MCQ वगैरह अच्छे से देख लेना, मॉड्यूल वाले। पढ़ना कैसे है? मॉड्यूल, ओके, मॉड्यूल, ऑल इलस्ट्रेशन, ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड योर दिस MCQs फ्रॉम द मॉड्यूल। फिर एक्स्ट्रा टाइम आपका बचता है तो फिर शीट का सम्स, एक्स्ट्रा MTP, ओके। पहला प्रेफरेंस मॉड्यूल पूरा, मॉड्यूल के बाद पास्ट पेपर्स, MTP जो 3 किए हैं, 6 पेपर्स आपने देखे हुए हैं, 4 एग्जाम पेपर्स और 3 MTP, 7 पेपर्स आपने देखा हुआ है। तो मॉड्यूल और MTP को कड़क रीत से आना चाहिए, हर एक क्वेश्चन बराबर से देख लेना, ओके। और MCQ वगैरह वहां से, और उसके बाद एक्स्ट्रा सम्स ऑफ द शीट जो हमने क्लास में किया हुआ है, इंपॉर्टेंट वाला कुछ देखना है तो। एंड दैट्स इट। स्पीड रखना, 3 आवर्स है तो अप्रोक्सीमेटली आपको 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, 12 to 13 क्वेश्चंस, ओके, इंक्लूडिंग द ट्रू और फॉल्स। तो टाइम स्पीड रखना, रीडिंग टाइम में आपको जजमेंट लेना है। पैटर्न आपका एकदम एग्जाम पेपर पैटर्न जैसा नहीं होगा यहाँ पे, ओके। पूरा धड़ाधड़ सब क्वेश्चंस मोस्टली कंपलसरी होंगे। एंड थियोरी का रिटर्न नहीं है, खाली ट्रू और फॉल्स, फॉर ट्रू और फॉल्स 8 मार्क्स, ओके। तो डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।